Tell me what sound more natural. My English teacher shouted at me without any specific reason, or my English teacher shouted at me for no apparent reason. If you still use sentence first, then don't worry. Today I'll show you 10 very powerful expressions that native speakers actually use. And trust me, these expressions will make your English sound more fluent and natural. Let's start with the first one. As I've already said, my English teacher shouted at me without any specific reason. And instead of that, to sound more natural, you can say, my English teacher shouted at me for no apparent reason. It means जब हमारे को ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मतलब एक क्लियर रीजन नहीं दिया बिना किसी बात के, then you say for no apparent reason. For an example, my neighbor stopped talking to me for no apparent reason. My mobile stopped working for no apparent reason. यानी मेरे नेबर ने पता नहीं क्यों बिना किसी बात के मेरे से बात करना बंद कर दिया बिना मुझे क्लियर रीजन दिए हुए. Because I don't know why is he not talking to me now. And like my mobile stopped working for no apparent reason. बिना किसी बात के, मुझे नहीं पता वो नहीं कहीं गिरा या कुछ हुआ उसके साथ कि वो उसने काम करना बंद कर दिया. समझ में आया? So now you tell me, has ever anybody got angry at you for no apparent reason? Tell me in the comments. Our next expression is take it in. यानी जब हम बहुत ज्यादा शॉकिंग या फिर अमेज्ड हो जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन से या किसी सिचुएशन में, तब हम बोलते हैं टेक इट इन. ठीक है, यानी अमेज्ड होकर अगर हम उस चीज पर भरोसा करते हैं तो हम टेक इट इन करते हैं उस चीज को, उसको रियल मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वी टेक इट इन. ठीक है, और अगर नहीं मानते देन वी ऐड नॉट. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव गॉट द जॉब आई कुडंट टेक इट इन. यानी जब मुझे पता लगा कि मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ इस बात पे. ठीक है, और जैसे कि when she came and told me that she was going to move abroad, I couldn't take it in. मुझे तो उसकी बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि वो abroad जा भी रही थी. ठीक है, and like my best friend called me and said that she is going to buy a car and I couldn't take it in at first. मतलब पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ उसकी बात पे कि वो सच बोल रही है. नहीं समझ आया? चलिए let's move on to the next expression. So our next expression is on an even keel. It means staying calm or balanced in any sort of situation. For an example, even seeing my brother wearing my favorite shirt, I tried to stay on an even keel. यानी मेरे ब्रदर को मैंने देखा कि भाई उसने मेरी शर्ट पहनी हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को काम और बैलेंस्ड रखा. ठीक है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा. Let's take some more examples. She stayed on an even keel during the interview. यानी वो इंटरव्यू जब उसका चल रहा था तब वो काम और बैलेंस्ड रही, वो घबराई नहीं. And a good leader remain on an even keel in any sort of situation. यानी जो एक गुड लीडर होता है, चाहे सिचुएशन कैसी मर्जी आ जाए, वो उसमें काम और बैलेंस्ड रहता है. ठीक है. And the last example, everybody panicked but he stayed on an even keel. यानी हर कोई परेशान हो गया, हर कोई पैनिक हो गया, लेकिन वो काम और बैलेंस रहा. सो नाउ यू टेल मी, वुड यू बी ऑन एन इवन कील इफ somebody broke your mobile? Our next expression is, let's suppose if somebody says that she doesn't like to share her feelings. So to sound it more natural and advanced, what we can say, she doesn't like to pour her heart out. Pouring heart out का मतलब होता है to share the feelings with somebody, isn't it? Or to share feelings. For an example, after breakup, she poured her heart out to her best friend. यानी उसने सारी फीलिंग शेयर, उसने अपनी सारी फीलिंग शेयर की अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब उसका ब्रेकअप हो गया था. He poured his heart out during the conversations. यानी बात करते करते उसने अपनी सारी दिल की बात शेयर की. Sometimes talking to a friend and pouring your heart out feels amazing. अच्छा लगता है ना अपने फ्रेंड्स के सामने बातें करना, हमारे दिल की बात बोलना. कभी अगर दिल में we feel heavy and we share with our best friends or any friends who we trust, तो वो शेयर करने के बाद we feel lighter, isn't it? So tell me, is there somebody who you can pour your heart out to?
After that, we'll discuss an expression which is flare up. It means to get angry suddenly. For an example, he flared up when I questioned him. जब मैंने उससे सवाल पूछा तो वो एकदम से गुस्सा हो गया. And my boss flared up during the meeting. यानी मेरे बॉस को अचानक से गुस्सा आया मीटिंग्स के दौरान. And the argument started when one person flared up. जब एक इंसान को अचानक से गुस्सा आया तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया फिर दो लोगों के बीच में या फिर जितने लोग थे उन लोगों के बीच में. कभी कभार होता है ना कि हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके बाद में हमें रिग्रेशन होता है यार हमने क्यों बोल दिया, और हम सामने वाले से सॉरी बोलते हैं. जैसे कि इफ आई सेड समथिंग दैट हर्ट यू और ऑफेंडेड यू सो आई एम सो सॉरी. यानी अगर तुम्हें मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी. तो हम इसको और कैसे कह सकते हैं? वी कैन से इफ माई वर्ड्स रब्ड यू अप रॉन्ग वे देन आई एम सो सॉरी टू यू. यानी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा या तुम मेरी बात से ऑफेंड हो गए तो आई एम सो सॉरी. फॉर एन एग्जाम्पल, हिज एटीट्यूड रब्ड मी अप द रॉन्ग वे. यानी उसका जो एटीट्यूड था मुझे बुरा लगा जिस तरीके से उसने बिहेव किया. और अगर हम कहे यार मेरा मतलब तेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि तेरे को बुरा लग जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि आई डिडंट मीन टू रब यू अप द रॉन्ग वे. तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं. एंड वी ऑल नो हु रब्स अप द रॉन्ग वे, राइट? As we have already discussed one expression which is flared up, means to get angry suddenly. And there is one more expression which is go off the deep end. That also means the same, to get angry suddenly. For an example, I have no idea why she got angry. यानी मुझे मतलब मेरे को नहीं पता कि वो गुस्सा क्यों हुई, ठीक है, या गुस्सा क्यों हुआ. तो हम कह सकते हैं I don't know why he or she went off the deep end. ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है. Let's take some more examples. He went off the deep end after hearing the news, and my father went off the deep end when he saw the bill. यानी जब उन्होंने बिल देखा तो उन्होंने अचानक से बहुत तेज गुस्सा आया. And don't mention that topic. He might go off the deep end. मतलब इस बारे में बात मत करो, शायद उसको इस बात पे गुस्सा आ जाए. और कभी कभार होता है ना कि हमको ऐसा फील होता है यार मैं बहुत तेज चिल्लाऊं, मेरे को चिल्लाने का मन है. मे बी आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो वी फील टू शाउट लॉट. तो उस टाइम पर हम एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं विच इज स्क्रीम योर हेड ऑफ. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ यार इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है, तो वी कैन से व्हाई आर यू स्क्रीमिंग योर हेड ऑफ. मतलब इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाई आर यू शाउटिंग सो लाउडली लाइक दिस. फॉर एन एग्जाम्पल, द फैंस स्क्रीम्ड देयर हेड ऑफ व्हेन सिंगर अराइव्ड. यानी जब सिंगर आया तो बहुत तेज ऑडियंस जो है, फैंस जो है वो चिल्लाए. एंड माई सिस्टर स्क्रीम्ड हर हेड ऑफ आफ्टर सीइंग अ स्पाइडर. यानी मकड़ी देखकर मेरी सिस्टर बहुत तेज चिल्लाई. एंड द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग देयर हेड ऑफ ऑन द रोलर कोस्टर. हम चिल्लाते हैं ना जब झूले पे बैठते हैं, बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं. तो what we do there, we scream our head off, isn't it? So now you tell me, what makes you scream your head off, a spider or a result? Our very interesting next expression is stir someone or something up. यानी किसी को गुस्सा दिलाना. अभी तक तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं then we stir somebody up. For an example, it is very easy to make him angry. So what we can say instead of that, it is very easy to stir him up. यानी उसे गुस्सा दिलाना बहुत आसान है. Let's take few more examples. Like, don't talk about politics, it will stir him up. यानी politics के बारे में बात मत करो, उसे गुस्सा आएगा. And my brother likes to stir people up. यानी उसको लोगों को गुस्सा दिलाना बहुत पसंद है. एंड ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से टू स्टर हर अप. यानी उसे पता है क्या कहना है जिससे उसे गुस्सा आ जाएगा. एंड दिस एक्सप्रेशन इज वेरी कॉमन इन आर्ग्यूमेंट्स और इन फैमिली सिचुएशंस. और जब हमें कहना होता है ना कि मैं बहुत खुश हूं, तो हम कहते हैं आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स आई एम वेरी हैप्पी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. I was on top of the world after passing the exam. I am on top of the world seeing you after such a long time. And he was
on top of the world when his team won. So today you have learned 10 very powerful expressions to level up your English. And those expressions were: for no apparent reason, take it in, on an even keel, pour your heart out, flare up, rub someone up the wrong way, go off the deep end, scream your head off, stirring somebody up, and the final one was on top of the world. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, so please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye.